Tell me the differential equation of SHM, beta. Differential equation of SHM. 1 minute sir, in notebook తెచ్చుకుంటా. What is the differential equation of SHM, beta? I told you last class. d square x by dt square plus omega square x equal to 0. Divided by dt square plus omega square into your x is equals to 0. 0. Isn't it? Here value of omega is how much, beta? Omega is equals to your under root of your k divided by your m. Yes sir. K is your SHM constant, m is the mass of the particle, and omega is your angular frequency. Now if I'm calculating the time period formula is t is equals to 2 pi by your omega. तो ये कितना बन जाएगा? This will become for me 2 pi under root of omega की वैल्यू यहाँ पर डाल दो. This will become for me m by your k. Done. Yes sir. Differential equation is d square x by dt square dx square d square x by dt square plus omega square into x is equals to 0, and omega value is under root of your k by m, and time period formula is t is equals to 2 pi by omega, that is under root of 2 pi under root of your m by k. Very important बेटा. और इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या था बेटा? मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था. x is equals to your, this will be equal to your a into your sine omega t plus of your phi naught. ठीक है ना? phi naught क्या होता है? phi naught is known as of your initial phase, is known as what? Initial phase. ठीक है? इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? phase angle. This one is known as what? Phase angle. Okay, what does the phase gives, beta? Initial phase gives the information about the initial position and direction of the motion of the particle, beta. So initial phase क्या देगा? Initial phase gives information, it gives the information about initial position, about your initial position and also direction, beta, and direction of motion of your body. Okay, I'll tell you one second what do you mean by this one. ये देखो बहुत ज्यादा important है बेटा. x is equals to a into sin omega t plus of phi में phi naught को क्या बोलते हैं अपन? Initial phase. Initial phase क्या देगा अपने को? It gives information about the initial position and also the direction of the motion. जैसा मान के चलो आपने अपने घर से कहीं दोस्त को मिलने गए, तो एक आधे घंटे के बाद आपके डैड और मॉम ने फोन करके अगर आपको पूछा कि बेटा अभी आप कहाँ पर हो, तो उस टाइम पे जहां पर आप होगे आप अपनी पोजीशन और सो एंड सो के घर पे हूं बोल के जो इन्फॉर्मेशन दोगे ना, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फेज बोलते हैं. ठीक है ना? Yes sir. So phi naught क्या देगा? Phi naught will give me the information about the initial phase and the direction of the motion of the particle. और phase angle किसको बोलते हैं? ओमेगा t plus phi naught पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? phase angle. Phase angle. क्लियर है? Yes sir. चलो एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पर अच्छी तरह से समझो. मान के चलो एक पार्टिकल ओरिजिन पे है, यहाँ पर कहीं पर. ओरिजिन मतलब x इज इक्वल्स टू 0, यानी ये कौन सा पोजीशन हो गया? मीन पोजीशन. ठीक है ना? मीन पोजीशन से हुआ और हो गया एक्सट्रीम पोजीशन तक. यहाँ पर हो गया ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ पर भी आया, ये भी यहाँ पर इसका हो गया एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है ना? तो ये हो गया मेरे पास प्लस ये, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ये. ये हो गया माइनस ये और ये हो गया प्लस ये. ठीक है? Yes sir. चलो अब देखो बेटा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए टाइम कितना होगा बेटा? ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो टाइम बनेगा t/4. ठीक है ना? देखो कैसा, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, इसको मैंने 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया. मैं बोल रहा हूँ कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अब गॉन टू द बी, फिर बी से सी गया, सी से फिर डी गया, डी से ये आया.
एक चक्कर काटने के लिए अगर टाइम पीरियड टी है तो ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t/4, 3/4, yes. इजंट इट। ए बाई से सी तक जाने के लिए t/2, इसी तरह से कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। Yes sir. तो फिर वापस आने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने के लिए भी टाइम कितना लगेगा, t/4 ही लगेगा ना, Yes sir. ठीक है ना। फिर यहाँ से जा रहे हो आप, ये मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हो, तो यहाँ पर भी टाइम कितना लगेगा, t/4 लगेगा। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो इसका भी टाइम t/4 लगेगा। तो मैं बोलने का मतलब यही है कि ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है और ये जो 4 है, 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लो एक बार, क्या टोटल टाइम पूरा मिलाने से क्या कैपिटल टी आ रहा है। Yes sir. Yes sir. नहीं बेटा, आ रहा है sir. मीन से Yes. एक्सट्रीम आने के लिए टाइम कितना होगा, T/4. फिर एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए टाइम कितना होगा, T/4. ठीक है ना। Yes इज sir. इट क्लियर, Yes sir. चलो वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है बेटा, ठीक है, Yes sir. इसका इक्वेशन मान के चलो ये है ए स्क्वायर, और मान के चलो आई गिव सम इक्वेशन फॉर दिस वन, a into your d square into your x divided by dt square, d square into your x divided by your dt square plus b into your x is equals to 0, ठीक है। Yes sir. अब मैं पूछ रहा हूं इसका टाइम पीरियड बताओ, पार्टिकल ऑसिलेट्स, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये है, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास है, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपने पास, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्या वही फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये, Yes sir. तो उस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड में अप्लाई कर लो, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई योर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू योर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये को अगर नीचे ले लूं तो क्या इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, देखो डी स्क्वायर इंटू योर एक्स डिवाइडेड बाई योर डी टी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ये को इधर ले लिया मैंने, इंटू योर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। Yes ले सकता sir. हूँ क्या, तो अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर के पोजीशन में, ये ओमेगा स्क्वायर के पोजीशन में क्या है मेरे पास, बी बाई ए है, तो क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बाई ए लिख सकता हूँ क्या, कंपेयर कर रहा हूँ, Yes sir. इजंट इट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ योर बी बाई ए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने कितना बताया था अभी, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा लेके जाके यहाँ पर डाल दो, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर ए बाई बी, हो गया टाइम पीरियड इसका, Yes sir. क्लियर हो गया, Yes sir. समझ में आया, Yes sir. चलो वेरी गुड। Initial phase in first quadrant, initial phase in कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो बेटा, ये मेरी एक सर्किल है, मान के चलो ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस,
यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला ना बेटा। तो पार्टिकल मान के चलो यहां से होते हुए यहां पर कहीं पर गया, यानी t इज इक्वल्स टू 0 के पास पार्टिकल कहां पर है, एट ये है, यानी आई एम स्टार्टिंग द पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट एट ऑरिजिन, यानी मैं ऑलरेडी ऑरिजिन से कितनी दूरी पे हूं, मान के चलो 5 नॉट। समझ में आया? यस सर। मान के चलो अगर ये दिस इज योर हाउस, दिस इज योर फर्स्ट फ्रेंड्स हाउस एंड दिस इज योर सेकंड फ्रेंड्स हाउस। मान के चलो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ स्टडी वगैरह करने के लिए कोई फंक्शन वंक्शन होगा, तो कभी कभी आप अपने घर को चले, घर से आप अपने फ्रेंड के पास चले जाते हो। मान के चलो एक दिन आपने अपने फर्स्ट फ्रेंड के घर पे रुक गया, यानी ये आपका एक्चुअल घर नहीं है, ये एक्चुअली आपका घर है। तो आपके घर से आप अपने फ्रेंड के से कितनी दूरी पे है, मान के चलो x0 है। समझ में यस आया? सर। यस एक्चुअली सर। आपको होना कहाँ था, घर, अपने घर पे होना चाहिए था। मान के चलो कोई स्टडी कर रहे हो या कोई पार्टी हो गई या कोई फेस्टिवल हो गया, तो आपने अपने कोई रिलेटिव घर के या अपने फ्रेंड के घर पे रुक गए, यानी अभी आपका जो पोजीशन t इज इक्वल 0 है, आप अपने घर से कितनी दूरी पे हो, x0 दूरी पे हो, यानी यू आर नॉट राइट नाउ इन योर रियल पोजीशन, यू आर समवेयर एल्स। यस सर। बात में समझ में आए? तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये पार्टिकल एक्चुअली ऑरिजिन से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रहा है, मान के चलो ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना? यानी टी यस सर। 0 पे पार्टिकल कितनी एंगल पे है, एक्स एक्सेस से x0 के दूरी पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना? यस सर। और ये मान ये दिस वन इज नोन एज व्हाट बेटा फॉर मी, एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। वो से ये तक अपन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज ऑफ योर एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। तो अब इसमें से cos थीटा की वैल्यू निकालो। मान के चलो ये जो मैंने y एक्स पे लिया हुआ है, बेसिकली x इज इक्वल्स टू कंडीशन पे, यहां से यहां तक अगर मैं ले रहा हूं x0 या y0, जो भी आपको समझ में आया वैसा, ठीक है ना? और एंगल हो रहा है बेसिकली यहां से यहां तक कंडीशन पे। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हो? cos थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हो? कॉस थीटा या कॉस फाई नॉट? ये थीटा ले लो ना, यहाँ से यहाँ तक इसको थीटा ले लेते हैं। ओके ओके। तो cos थीटा की वैल्यू बताओ। सो ए कॉस थीटा। cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या, x0 डिवाइडेड बाय लिख सकता हूँ, एक्स नॉट डिवाइड बाई यस सर। isn't it? मैंने एंगल कहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है, y एक्सिस से किया हुआ बेटा, हाँ यस सर। isn't it? So we calculated angle from y axis. Okay, phi naught की वैल्यू क्या है बेटा, phi naught is equals to कहाँ से, x एक्सिस से, यस सर। x एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है कि नहीं? तो मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, x0 आपको एंगल कहीं पर कभी भी कहां से मेजर करना है, इस पॉइंट P से मेजर करना है, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर जो मेजर किया आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ, ठीक है ना? इक्वेशन बताओ एक बार आप, कैन राइट मी द इक्वेशन ऑफ एन SHM बेटा, x is equals to your a into your sin साइन omega t plus of प्लस your phi naught, कहां से, x axis से, along your x axis। अगर मेरे पास phi naught की वैल्यू 90 माइनस थीटा होती, तो x की वैल्यू क्या लिखते आप, x is equals to your a into sin omega t plus this will be 90 minus theta। तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, cos। तो x Yes, value sir. will be equal to how much for me, a into your cos omega t minus of your theta। यस सर। This is from where axis, along your y axis। थीटा नॉट आया तो x एक्सिस पे था, अगर थीटा ले रहे हो तो y एक्सिस पे।
ये दो इक्वेशंस दोनों भी करेक्ट है, कब लेना है ये अपने को आइडिया होना जरूरी है। ये कब लोगे बेटा, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये कब लोगे, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग योर वाई एक्सिस। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? हाँ सर। एक बार देख लो फिर से, एक बार मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझना। मान के चलो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 है, और ये यहाँ पर ये है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? देखो यहाँ पर x इज इक्वल 0 टू x इज इक्वल ये जा रहा हूँ, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ ना देखो, यहाँ पर देखो मीन से एक्सट्रीम जा रहा हूँ, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है? मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t/4 है कि यस नहीं? सर। अब ये देखो x इज इक्वल 0 टू x इज इक्वल ये, मतलब x इज इक्वल्स टू योर एक्सट्रीम पोजीशन। मान के चलो t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, x इज इक्वल्स टू a/2। एक्चुअली पार्टिकल ऑरिजिन पे नहीं है, t इज इक्वल 0 पे पार्टिकल कहां पर है, a/2 पे है। हाँ सर। ठीक है, मतलब देखो इसका अगर मैं डायग्राम में आपको समझा दूं, ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये आपका ओरिजिन होना चाहिए था, ये आपका वाई एक्सिस होना चाहिए था। अब ये जो पार्टिकल है ना यहाँ पर कहीं पर है, इसका मतलब ओरिजिन पे नहीं है, मतलब ये वैल्यू कितना हो गया है बेटा, x की वैल्यू कितना दे रखा है, a/2 दे रखा है, और ये एंगल कितनी है यहाँ पर, थीटा, और ये एंगल कितना होता है, थीटा नॉट यानी फाई नॉट। बात समझ में आई? यस सर। तो ये कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। वो से ये तक क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो cos थीटा की वैल्यू बताओ कैसे लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, ये भी अपने को a/2 होगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, a/2 डिवाइडेड बाय ये, यस सर। तो ये चले गया तो कितना बन गया, 1/2। यस सर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज। यस सर। तो आप x की पोजीशन बता सकते हो क्या, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू ये इनटू sin ओमेगा t प्लस ऑफ योर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। अब फाई नॉट की वैल्यू बताओ, थीटा 60। प्लस फाई नॉट विल बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज होता है ना। यस सर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अपने को, 60 प्लस ऑफ योर थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, यानी ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस 60, यानी दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। यस सर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू a इनटू sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्रीज विल बी योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। इक्वेशन लिखने का तरीका देखो, x इज इक्वल्स टू a इनटू sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट निकालने का तरीका, पहले मैंने थीटा निकाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, थीटा प्लस फाई नॉट इज 90, तो उसमें से फाई नॉट की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू डाल दिया। बात समझ में आई? यस सर। करने का तरीका, चलो और एक छोटा सा एप्लीकेशन है बेटा, फेज डिफरेंस निकालने का तरीका। फेज डिफरेंस निकालने का तरीका, अब देखो जरा इसको अच्छी तरह से समझो। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। यस सर। अब देखो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां पर है और पार्टिकल यहां पर है, तो क्या दोनों एक ही कोऑर्डिनेट पे है, ये देखो यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या दोनों का पोजीशन कोइंसाइड हो रहा है क्या, यस isn't it? यानी कि अगर मैं इसको लीनियर डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊं आपको, ये हो गया अपना मीन पोजीशन, x इज इक्वल्स टू 0। मान के चलो पार्टिकल पहले सीधा जा रहा था, यहाँ पर कहीं पर 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर वापस गया, फिर वापस रिटर्न आ रहा है, तो फिर यहाँ पर कहीं पर आया, फिर 1 सेकंड के लिए रुक गया, तो क्या ये दो पॉइंट्स कोइंसाइड हो रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से जा रहा था, अब सेकंड में जब इस तरह से जा रहा था, यहाँ पर ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। कौन से टाइम पे कोइंसाइड हो रहे हैं, मान के चलो t इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है ना? Yes, sir. मतलब क्या, मान के चलो अगर एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो क्या दोनों एक ही टाइम पे अगर अपने मोशन स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? Yes, sir. Isn't it? तो मैं क्या समझ रहा हूं यहाँ पर कि समवेयर एट सम पॉइंट राइट नाउ टी इज इक्वल टू 0, दोनों मान के चलो कहीं पर मिल रहे हैं बेसिकली। Yes, ये sir. वाला जो कंडीशन है ना यहाँ पर है टी इज इक्वल टू 0 पे, यानी टी इज इक्वल 0 पे फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सामने जा रहा है, सेकंड टी इज इक्वल 0 में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में द पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर कहीं पर है। Yes, sir. बस समझ में आई? Yes, sir. ये डिस्टेंस मान के चलो a/2 पे है, Yes, sir. तो ये थीटा कितना आएगा बताओ जल्दी से, अभी करें हम लोग ने 30 डिग्री आ जाएगा। फाई नॉट की वैल्यू देखो कितनी आई थी इससे पहले, 30 डिग्री। जब x की Yes, वैल्यू sir. a/2 होगी, x की वैल्यू जब a/2 होगी तो थीटा नॉट या फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आएगी, Yes, sir. इजंट इट? अगर ये 30 डिग्री है तो ये पार्टिकल कितना बनेगा बेटा? कौन सा सर? ये वैल्यू कितनी होगी, 60? हाँ, yes, sir. ये तो 60 हो जाएगा, इजंट इट? तो ये भी 60 होगा, Yes, sir. तो ये एंगल कितना हुआ पूरा एक्स एक्सिस से, 150, Yes, sir. isn't it? तो थीटा 1 कितना है बेटा एक्स एक्सिस से, थीटा 1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और ये थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री। यानी अगर पार्टिकल 30 डिग्री पे हो या 150 डिग्री पे हो तो दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस बताओ। तो फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री, फाई 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 150 माइनस 120 तो 30 यानी 120 डिग्री। Yes, sir. फिर से एक बार देख लो, कोई डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो। समझा सर. क्लियर है ना? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलिए छोटा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं पहले, लेट मी सी हाउ फार यू अंडरस्टूड दिस वन। अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, रेगुलरली आता है एंट्रेंसेस में, एक बार देखो। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0 बेटा, और ये हो गया x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, Yes, sir. यानी ये x इज 0 मतलब कौन सा पोजीशन बेटा, मीन Mean. पोजीशन। ये कौन सा, एक्सट्रीम। तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लगता था मुझे ये बताओ। T/4. वेरी गुड, t/4। Yes, sir. अगर मैं बोलूं कि मैं आई एम समवेयर एट दिस पोजीशन, यानी मैं यहाँ पर कहीं पर हूँ, विच इज डिस्टेंस ऑफ a/2, ठीक है? Yes, sir. x इज इक्वल्स टू योर a/2 के पास हूँ। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना होगा और ये कितना? T/8. Sir, T/8. भाई 8. कहाँ से कहाँ तक? t/8 आता, देखो नहीं आता t/8,
थीटा इज इक्वल्स टू योर ओमेगा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? अब x इज इक्वल्स टू मान के चलो a इंटू साइन ओमेगा इंटू टी प्लस ऑफ योर फाइव नॉट, ठीक है ना? तो x इज 0 से लेके a/2 तक जाने के लिए फाइव नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्रीज, Yes, sir. इजंट इट? अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो x इज इक्वल्स टू योर a इंटू योर साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी, Yes, sir. यानी साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी विल बी इक्वल टू योर x बाई ए। x की वैल्यू कितनी है? a/2 डिवाइडेड बाई a चले गया 1/2, यानी साइन ऑफ योर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1/2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइन इट इज 1/2 बेटा? 30. साइन ऑफ योर 30, तो साइन साइन चले गया। ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 30. 30 डिग्रीज, ठीक है ना? Yes, sir. isn't it? यानी अगर अपने को टाइम निकालना है बेसिकली तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए टाइम फ्रॉम दिस वन। कैपिटल टी इज इक्वल्स टू योर हाउ मच फॉर मी, और थीटा इज इक्वल्स टू आप क्या ले सकते हो? थीटा इज इक्वल्स टू योर ओमेगा इनटू टी। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 30 डिग्रीज। थीटा ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू टी, ऐसा भी लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है? Yes, sir. को 0 से लेके a/2 तक जाने के लिए टाइम कितना लग जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू t/12 और यहाँ पर लग जाएगा t/6, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. नेक्स्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं बेटा। वेलोसिटी वगैरह करवाया है मैंने? Yes, sir. वेलोसिटी वगैरह करवाया? हाँ sir. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था जल्दी से? फॉर्मूला क्या था अपने पास? x इज इक्वल्स टू योर a इंटू योर साइन ओमेगा t प्लस ऑफ योर फाइव नॉट। Yes, sir. Displacement. ये डिस्प्लेसमेंट फील्ड, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? Speed. Velocity. वेलोसिटी आ जाएगा, dx by dt कर लो तो, सो v इज इक्वल्स टू योर a ओमेगा इंटू cos ऑफ योर ओमेगा इंटू t प्लस ऑफ योर फाइव नॉट। ये आ गया वेलोसिटी। या वेलोसिटी और एक लिखने का तरीका, v इज इक्वल्स टू योर ओमेगा अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस ऑफ योर x स्क्वायर, ठीक है ना? Yes, sir. This is very important formula. V is equals to omega under root of your a square minus x square. ये लिखने का तरीका होगा बेसिकली, ठीक है? Yes, sir. ये कब एक्सट्रीम और कब मिनिमम होगा बताइए बेटा? अगर x is equals to 0 ले लिया यानी मीन पोजीशन, Yes, sir. मीन पोजीशन में ऊपर वाले में x में 0 रख दो तो क्या बन जाएगा? v मैक्सिमम बनेगा। v Yes, max is sir. equals to your a ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन में यानी x is equals to your a, x is equals to your a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। In extreme position, v will be equal to minimum. That will be equal to your 0. Yes, sir. Mean position के बाद maximum velocity और extreme position के पास minimum velocity. ठीक है? Yes, sir. चलो, v versus x का फॉर्मूला या ग्राफ बताइए आप एक बार। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा एक बार। वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ, ठीक है? Yes, sir. v का फॉर्मूला क्या था? ये वाला, इसको स्क्वायर करके लिख दो। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो v स्क्वायर कितना बन गया? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर, माइनस को इधर ला लो, प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू योर एक्स इज इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर ए इंटू योर ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। आया? Yes, sir. नहीं, यानी अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करें इसको, लाइक y स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर b स्क्वायर प्लस ऑफ योर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
ये कौन सा इक्वेशन है बेटा? एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ना बेटा? यस सर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स. यस सर. तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा? अपने को अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, ये हो गया माइनस ये और ये हो गया प्लस ये, यहाँ पर मैक्सिमम ऐसा कुछ और ये कुछ एलिप्स फॉर्म, ठीक है ना? तो पार्टिकल यहाँ पर आ गया है तो ये इंटू ओमेगा, और यहाँ पर आ गया है तो ये इंटू योर ओमेगा, माइनस ऑफ ये ओमेगा, ये हो गया प्लस ऑफ ये. क्लियर है? यस सर. v वर्सेस x का अगर आप ग्राफ पूछा, यहाँ पर y एक्सिस में वेलोसिटी और x एक्सिस में x ले ले, तो दैट विल बी व्हाट? एन एलिप्स. यस सर. बात समझ में आए? यस सर. ये क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट विल बी दिस वन बेटा? ये कितना होता है? ये ओमेगा के बराबर होता है ना? यस सर. इजंट इट? क्लियर? यस सर. चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इधर यू कैन आंसर मी इट और नॉट. अगर मैं ग्राफ का क्वेश्चन दे दो, मान के चलो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया उसने एलिप्स का, और बोला कि ये वाला पॉइंट है ना 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी वेलोसिटी, और ये x है, मान के चलो दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर 5 सेंटीमीटर यानी एम्पलीट्यूड, isn't it? Find time period. Find time period. करो. ऊपर वाले से अगर मैं इक्वेट करूं तो यहां से यहां तक क्या होगा बेटा? ये ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 है ना बेटा? यस सर. यानी ये की ओमेगा की v की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/2 1/2 रेडियंस पर सेकेंड. निकालना क्या है? टाइम पीरियड. ओमेगा कैसे ले सकता हूं मैं? 2π/t. या दैट इज इक्वल्स टू 1/2, यानी t will be equal to how much? 4 seconds, sorry 4 pi seconds. तो है ना बेटा? टाइम पीरियड will become how much for me? 4 pi seconds. आया? यस सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. क्लियर है? यस सर. चलो, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड बेटा. ठीक है? यस सर. अगर मेरे को वेलोसिटीज लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखना है, रेगुलरली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी. मान के चलो ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ पर जब पार्टिकल था इसकी वेलोसिटी मान के चलो v1 थी, x इज इक्वल्स टू x1 के पास इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1. और थोड़ी दूर के बाद x इज इक्वल्स टू x2 के पास इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2.
यानी हम अपन स्टार्ट किए x इज इक्वल टू 0 के पास, x इज इक्वल टू x1 के पास आने के साथ ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1, और थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2. दैट मींस वेलोसिटी एट टू डिफरेंट पोजीशंस आर गिवन फॉर अस बेटा. यस सर. तो v का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो अब इसमें से v1 और v2 लिख दो एक बार जल्दी से. v1 is equals to omega under root of your a square minus x1 square लिख दो. Yes, sir. v2 is equals to omega under root of your a square minus of your x2 square. ठीक है ना. Yes, sir. तो अब दोनों को स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ, यानी v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हो गया a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. उसी तरह से v2 को भी स्क्वायर कर लो. v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ऑफ योर x2 स्क्वायर. अब दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा. v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर गेट्स कैंसिल. a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ योर x2 स्क्वायर. लिख सकता हूँ ऐसा. So this one is v1 square into your a square minus x2 square is equals to your v2 square into your a square minus of your x1 square. ठीक है. Yes, sir. तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस वन इज योर v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर. तो ऑल द ए टर्म्स एक जगह ले लो तो क्या हो जाएगा देखो. इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. सो दिस वन इज v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू योर v1 स्क्वायर. दिस विल बिकम फॉर मी योर x2 स्क्वायर. यस सर. ये हो जाएगा कितना x2 स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी v2 स्क्वायर इनटू योर x1 स्क्वायर. लिख सकता हूं ऐसा. तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना बन गया बताओ जल्दी से. एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये हो गया मेरे पास v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड. क्लियर है. यस सर. अपने को निकालना क्या था. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. यानी दो पोजीशन पे अगर अपने पास v1 v2 दिया, अगर वो एम्पलीट्यूड पूछा तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. आई कांट गो फॉर योर डेरिवेशन ऑफ दिस मच लेंथी इन योर एग्जामिनेशन हॉल. है कि यस सर. अपन को ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है बेसिकली. जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना दैट विल गिव मी द कंडीशन. अगर दो वेलोसिटीज दे दे, दो पोजीशंस दे दे, अगर वो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा. a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. हो गया. यस सर. उसी तरह से दोनों को सबट्रैक्ट करो बेटा. दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट 1 and 2. 1 and 2 कौन सा है. ये वाला 1 and 2 नाम दे लेता हूँ फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएगा. ये मान के चलो इक्वेशन 1 है और ये मान के चलो इक्वेशन 2. ठीक है. दोनों को सबट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर is equals to omega square a square minus omega square x1 square माइनस ये हो जाएगा v2 स्क्वायर is equals to omega square a square minus omega square minus of your x2 square. isn't it? तो यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये चले जाएगा सीधा सीधा. तो कितना बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन इनटू योर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. लिख सकता हूँ क्या. यस सर. फ्रैक्शन हो गया. तो इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो. ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ योर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर. बहुत बार मेंस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन से बेटा, इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूँ. अब ओमेगा मालूम है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप. t is equals to your 2 pi divided 2 pi by omega. isn't it. t is equals to your 2 pi divided by omega. ओमेगा की वैल्यू डाल दो. टाइम पीरियड कितना आ जाएगा. t is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ योर ये बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस ऑफ योर v2 स्क्वायर. ये हो गया इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला. क्लियर है. यस सर.
तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यानी ये कब यूज करोगे, जब अपने पास x1 x2 हो और v1 v2 है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और ओमेगा निकालने का ये 3 फॉर्मूले से बेटा ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए प्रॉब्लम से, इसलिए मैंने आप लोग को इसका डिटेल में डेरिवेशन किया हुआ है। टी निकालने का तरीका, ओमेगा निकालने का तरीका और एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका। क्लियर है? क्लियर बेटा? यस सर। चलो छोटा सा क्वेश्चन करके बता दो मेरे जल्दी से। मान के चलो एट स्क्रीन डल दिख रहा है क्या? नो सर। एट x is equals to 1 सेंटीमीटर, मान के चलो v is equals to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। The same way, at x is equals to 2 सेंटीमीटर, मान के चलो velocity is 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ओके, कैलकुलेट ए एंड टी। क्लियर? सर चलो करके बताओ। यानी x1 दे रखा है, v1 दे यस रखा सर। है, बोलने का मतलब ये है ना, यस सर। और x2 दे रखा है और v2 दे रखा है। हाँ, सो अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 x1 v1 हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, हाँ a यस सर। इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यस सर। तो कितना आ रहा है देखो एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 स्क्वायर इंटू x2 मतलब कितना है, x2 मतलब 2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर। होता है ना? यस सर। तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब कितना 9 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, isn't it? यस सर। 4 9s are 36 36 minus 1 35 35 divided by 9, sorry 8, 8 35 divided by 8, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा, ये इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया एम्पलीट्यूड। यस सर। अब अगर अपने को टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा, टी इज इक्वल्स टू योर 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर, क्या फॉर्मूला था बेटा जल्दी से बताओ टाइम पीरियड के लिए, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, है कि नहीं, दैट इज Yes, 2 sir. बाई अंडर रूट ऑफ x2 कितना था बेटा, x2 देखो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1, यानी दैट विल बी इक्वल टू योर 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Yes, sir. उसी तरह से अगर ओमेगा के फॉर्मूला पूछा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, यानी दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई, हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ योर, ये कितना बन जाएगा, कुछ गलत किया क्या मैंने, 3 स्क्वायर 9 होगा ना यहाँ पर, सॉरी कुछ गलती किया है मैंने यहाँ पर, कैलकुलेशन गलती किया देखो ना, v1 कितना है बेटा, v1 इज 3 स्क्वायर मतलब 9 होगा ना, ये 3 हाँ, स्क्वायर yes, ये sir. 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने को 8 स्क्वायर मतलब ये हो गया 8, यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 8, यानी 2 पाई चले जाएगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ योर 8 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी द ओमेगा। क्लियर है?
Yes, sir. Sure. लास्ट के असाइनमेंट्स हो तो क्या अपन ने? हाँ सर. नेक्स्ट वन देखो. एनर्जी ऑफ एसएचएम. कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम बना रहा तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी बेटा? Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ एक बार पहले से. Half mv काइनेटिक square. इक्वल्स टू हाफ इनटू एम इनटू योर वी स्क्वायर. है कि नहीं? Yes, sir. v की वैल्यू पता अपने पास क्या थी? v इज इक्वल्स टू अपने पास था a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. Yes, sir. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ योर a इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ योर ओमेगा टी. और x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टू. x को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आया. याद है ना? Yes, sir. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू m. v स्क्वायर बन गया अपने पास a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू और cos स्क्वायर ओमेगा t. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू और हाफ इनटू m. वेलोसिटी और एक फॉर्म क्या है बेटा? v इज आल्सो इक्वल टू और ओमेगा अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो ये कितना बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू योर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर भी बन जाएगा. वेलोसिटी Yes, sir. और नेक्स्ट वाला देखो, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर u. तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ इनटू k इनटू योर x स्क्वायर. ठीक है ना? k की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर k बाई m लिखा था इससे पहले अपन ने. Yes, sir. याद है? Yes, sir. टू अंडर रूट ऑफ k बाई m. यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m बन जाएगा. तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी? m इनटू योर ओमेगा स्क्वायर. यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा? u इज इक्वल टू हाफ इनटू k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू और x स्क्वायर. Yes, sir. ठीक है ना? सो दिस इज द u. या हम इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू और हाफ इनटू m इनटू योर ओमेगा स्क्वायर. हाफ इनटू m इनटू योर ओमेगा स्क्वायर. x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? a स्क्वायर इनटू योर sin स्क्वायर ओमेगा इनटू t, क्योंकि x की वैल्यू आ गई ना अपने पास. Sir. देखो एक बार x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a इंटू साइन ओमेगा टी. एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है? Yes, sir. तो अब टोटल एनर्जी कितनी आएगी बता? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? हाफ इंटू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर a स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ इंटू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर a स्क्वायर इंटू योर cos स्क्वायर ओमेगा t. प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू योर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू t. इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? हाफ इंटू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन हो गया. तो दिस विल बी योर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस ऑफ योर साइन स्क्वायर ओमेगा t. तो कितना आ जाएगा बेटा? क्लियर है? Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. Yes, sir. टोटल एनर्जी कितना हो गया अपने पास? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. क्या हाफ कांस्टेंट है? Yes, sir. मास ऑफ द पार्टिकल भी कांस्टेंट है. Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, a स्क्वायर भी कांस्टेंट. तो टोटल एनर्जी कभी भी क्या हो जाएगी अपने पास? कांस्टेंट. Constant. क्लियर है? Yes, sir. पूरे फॉर्मूले को पक्का याद रहना है बेटा अपने को. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ योर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t और हाफ ऑफ योर m इनटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है हाफ ऑफ योर m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर ओमेगा इनटू योर t. उसी तरह से टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. सो टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन फॉर योर कांस्टेंट. इसका ग्राफ याद है बेटा आपको? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली देख लो. This one is plus A, this one is your minus A.
x इज इक्वल्स टू माइनस ए एम्पलीट्यूड, और y एक्सिस पे अपन ले रहे हैं एनर्जी, y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं अपन, एनर्जी, एनर्जी वर्सेस का x का ग्राफ। पोटेंशियल टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो दिस वन इज योर टोटल एनर्जी, दिस वन इज योर टोटल एनर्जी। उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करूं तो दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस ये, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ये, और उसके बाद अपने को काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऐसा, ठीक है ना। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये रेड वाला है काइनेटिक एनर्जी, और एल वाला है टोटल एनर्जी। क्यों बोलो बेटा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी देखो U इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू m इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना बेटा। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इन्वर्टेड पैराबोला। यस सर। इसलिए मैंने सिर्फ ग्राफ ड्रा किया हुआ इसको। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। देख लो एक बार जल्दी से, अपने के इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। इसका रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ बेटा, अब रिकॉर्ड इट। आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन रीसेंड इट एंड ट्राई टू डू इट आउट। अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट वन, ठीक है। ओके। तो इसके ऊपर हम लोग और एप्लीकेशन कर लेंगे, ओके। यस सर।